آپ سن رہے ہیں کہانی جوالا اسٹوری ویل پر۔ زیان اس گلی میں مڑ کر پچھتایا۔ اس نے سوچا اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں سیدھے روٹ سے نکلتا، یہ گلیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ بائک چلا چلا کر تھک چکا تھا۔ اصل میں آج آفس میں کافی کام تھا، اس لیے وہ آج دیر سے نکلا۔ شام ہو چکی تھی اور اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ اس نے مین روڈ کی بجائے ایک شارٹ کٹ سے گھر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ جلدی پہنچ سکے، مگر یہ فیصلہ اس کو کافی مہنگا پڑا۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں مڑتا چلا گیا اور نہ جانے کب راستہ بھٹک کر کہیں اور جا نکلا۔ اب اس کا تھکن سے برا حال تھا۔ سردی کی راتیں تھی، اس لیے گلیاں بھی سنسان تھی۔ زیان نے ایک اور گلی میں بائک موڑ دی اور سوچا شاید یہاں سے باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ وہ گلی کافی لمبی تھی۔ زیان بائک کی رفتار کم کر چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ کوئی دکان یا بندہ نظر آئے تو راستہ پوچھ لے، مگر گلی میں کوئی نہ تھا۔ ایک جگہ بائک روک کر اس نے سوچا بائک واپس موڑ لیتا ہوں، یہ گلی تو شیطان کی آنت ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کو ایک لڑکی کی آواز سنائی تھی۔ سنے، آواز کی مٹھاس نے زیان کو حیران کر دیا۔ جس دروازے کے آگے زیان کھڑا تھا وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور آواز اس دروازے کے پیچھے سے آئی تھی۔ زیان نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، جی فرمائیں۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا مگر اندر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے لڑکی نے کہا، یہ دودھ کا پیالہ سامنے اینٹوں کے پاس رکھ دے۔ پھر اس لڑکی نے ایک ہاتھ دروازے سے باہر نکال کر ایک مٹی کا پیالہ زیان کی طرف بڑھا دیا جس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ زیان اس ہاتھ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سفید موم جیسا ہاتھ تھا، انگلیوں کے پوروں پر پرانے سٹائل کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ بیچ کی انگلی میں سرخ نگینا چڑی انگوٹھی اور ہتھیلی کے آخری سرے پر ایک سنہری چوڑی ٹکی ہوئی تھی۔ زیان کو گمسم پا کر اس لڑکی نے کہا، اصل میں ان اینٹوں کے پیچھے ایک بلی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، یہ دودھ اسی کے لیے ہے۔ لڑکی کی آواز آئی تو زیان کو بھی ہوش سا آیا۔ اس نے بائک سٹینڈ پر کھڑی کی اور پیالہ تھام لیا۔ وہ آگے بڑھا اور پیالہ احتیاط سے اینٹوں پر رکھ دیا۔ واپس پلٹتے وقت اس نے گھر پر نظر ڈالی۔ کافی بڑا اور شاندار سا گھر تھا۔ گھر کے سامنے کی دیواروں پر خوبصورت بلب لگے تھے۔ گیٹ بھی کافی بڑا تھا اور اوپر کی منزلوں پر لگی کھڑکیاں بھی کافی بڑی اور خوبصورت تھی۔ زیان واپس بائک پر بیٹھا اور دروازے کی سمت دیکھا۔ لڑکی اب بھی وہاں موجود تھی، اس کی انگلیاں دروازے کو تھامے ہوئے تھی۔ زیان نے اس سے پوچھا، یہ گلی آگے مین روڈ تک جائے گی؟ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، یہ تو ایک بند گلی ہے، آگے سے جانے کا راستہ ہی نہیں۔ اگر آپ کو مین روڈ پر جانا ہے تو واپس جائیں، پیچھے والی گلی آگے جا کر مین روڈ سے ملتی ہے۔ زیان نے تھکی ہوئی نظروں سے اس لمبی سی گلی کو دیکھا اور بائک موڑنے لگا۔ لڑکی پھر بولی، سنیں، آپ اپنی بائک میرے گھر میں سے گزار کر لے جائیں، میرے گھر کا پچھلا دروازہ اسی گلی میں کھلتا ہے۔ زیان اس لڑکی کی آفر پر حیران رہ گیا اور بولا، نہیں، میں آپ کے گھر سے بائک کیسے نکال سکتا ہوں؟ آپ کے گھر والے اعتراض کریں گے۔ لڑکی نے کہا، اس وقت میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ اس نے مین دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ زیان کشمکش میں پڑ گیا اور سوچنے لگا، کیا کروں؟ اتنی لمبی گلی پار کر کے واپس جاؤں یا اس لڑکی کی آفر قبول کر لوں؟ اس کو سوچتا دیکھ کر لڑکی بولی، بے فکر ہو کر آ جائیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ زیان کا تھکن سے برا حال تھا، اس نے لڑکی کی بات مان لی اور گیٹ کھول کر بائک اندر لے آیا۔ لڑکی اندھیرے میں کھڑی تھی، بڑا سا دوپٹہ ماتھے سے کچھ نیچے آیا ہوا تھا۔ زیان پورا چہرہ نہیں دیکھ پایا مگر اس سے اتنا اندازہ ہو گیا کہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ لڑکی نے کہا، یہاں سے بائک لے کر آئیں، اور آگے بڑھ گئی۔ زیان بائک لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک بڑے سے لاؤنج سے گزرتے ہوئے باہر صحن میں نکل آئے۔ بہت خوبصورت گھر تھا، عمدہ فرنیچر، خوبصورت ڈیکوریشن دیکھ کر زیان بہت امپریس ہوا۔ لڑکی بولی، اپنی بائک یہاں کھڑی کر دیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ اب وہ لڑکی زیان کے بالکل سامنے تھی۔ ایسا مکمل حسن زیان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پل کے چپکانا بھول گیا۔ لڑکی بولی،
आप अंदर लॉन्च में आ जाएं, यहाँ खड़े होकर पानी पीना अच्छा नहीं लगेगा। जोयान की अकल इसके हुस्न के सामने जवाब दे गई। वो रोबोट की तरह इसके पीछे चलता हुआ लॉन्च में पहुंच गया। बहुत बड़ा और सजा हुआ लॉन्च था। सामने 3 दरवाजे थे, मगर सब बंद थे। घर में बिल्कुल खामोशी थी। लड़की ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा, बैठ जाइए, और खुद बाहर चली गई। इसके जाने के बाद जोयान के दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया। न जाने कौन लड़की है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो उठ खड़ा हुआ, मगर इससे लम्हे वो लड़की छोटी सी ट्रे में एक गिलास पानी और एक कप चाय लेकर अंदर दाखिल हुई और इसे खड़ा देखकर बोली, अरे आप खड़े क्यों हो गए, बैठ जाइए ना। जोयान फिर इसकी खूबसूरती में गुमसा हो गया और बैठ गया। लड़की ने ट्रे जोयान के आगे मेज पर रखी और खुद सामने वाले सोफे पर जा बैठी। जोयान ने गिलास उठाकर चंद घूंट पानी पिए, फिर हिम्मत करके पूछा, आप अकेली रहती हैं? लड़की उदासी से मुस्कुराई, जी ज्यादातर अकेली ही रहती हूँ। मेरे शौहर को दोस्तों के साथ वक्त गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है। जोयान ने हैरान होकर कहा, आप जैसी हसीन बीवी को छोड़कर वो दोस्तों में वक्त गुजारता है, हैरत है। लड़की की उदासी बढ़ गई। वो सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी। जोयान अपनी नजरें इसके चेहरे पर से हटा नहीं पा रहा था। जोयान ने अगला सवाल किया, और आपके बच्चे? लड़की ने जख्मी निगाहों से जोयान की तरफ देखा और बोली, मेरे शौहर को बच्चे पसंद नहीं हैं। जोयान एक बार फिर हैरान रह गया और बोला, क्या आपके शौहर को बच्चे पसंद नहीं है? कैसा अजीब शख्स है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बस अपनी अपनी किस्मत। अचानक लड़की की नजर चाय पर पड़ी और वो बोली, अरे आपने चाय तो पी ही नहीं। फिर वो उठकर जोयान के करीब आ बैठी और चाय का कप उठाकर जोयान के हाथ में थमा दिया और मुस्कुराकर बोली, चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। जोयान ने घूंट घूंट करके चाय पी ली। इस सर्द मौसम में चाय पीकर इसकी थकन कुछ कम हुई। इस दौरान वो पास ही बैठी रही। जोयान पर इसके वजूद से उठती खुशबू का जादू सा चलने लगा। इसका ज़हन काम करना बंद कर चुका था। वो नशे की सी हालत में बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। जोयान की आंखें बंद होने लगी। इससे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि लड़की इसके करीब आती जा रही थी। जोयान ने उठना चाहा, मगर लड़खड़ाकर गिरने लगा। लड़की ने इसको थाम लिया और बोली, लगता है आपको नींद आ रही है, आप थक गए हैं, कुछ देर यहाँ सोफे पर ही आराम कर ले। वो जोयान को कंधों से पकड़कर सोफे पर लेटाने के लिए इस पर झुकी। जोयान की आंखें अब बंद हो चुकी थी, मगर इसे अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हो रहा था, जैसे कोई कीड़ा काट रहा हो। इसके डूबते जहन ने सोचा, कोई मच्छर होगा। न जाने जोयान कितनी देर सोया। अचानक इस लड़की ने जोयान को बुरी तरह झंझोड़ा और बोली, जल्दी उठिए, जाए यहाँ से, मेरा शौहर आ गया है। जोयान को होश आ गया। वो बिजली की तेजी से उठा। बाहर मेन गेट से किसी के अंदर आने की आवाज आई। लड़की इसको लेकर सहन की तरफ भागी और एक पर्दे के पीछे इसको छुपाकर बोली, आप यहाँ छुप जाइए, मैं इसे बेडरूम में ले जाऊंगी। आप 10 मिनट बाद गली के दरवाजे से निकल जाइएगा, आपकी बाइक गली में ही खड़ी है। ये कहकर लड़की अंदर भागी। जोयान सोचने लगा कि मैंने तो बाइक शहर में खड़ी की थी, बाहर गली में कैसे चली गई। इसी वक्त अंदर से लड़की के शोर की तेज आवाज आना शुरू हो गई। वो गुस्से से कह रहा था, ज्वाला, आज फिर तुमने वही हरकत की, मैंने कितना मना किया था तुम्हें। लड़की जिसका नाम ज्वाला था बोली, मैंने कुछ नहीं किया कामोस, तुम देख तो रहे हो यहाँ कोई भी नहीं आया। लड़की का शौहर कामोस बोला, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे किसी की खुशबू महसूस हो रही है। ज्वाला बोली, ये खुशबू तो मैंने लगाई है, लो मेरा दुपट्टा सुनकर देखो। कामोस बोला, ज्वाला, मैंने आज सुबह बहुत गौर से तुम्हें देखा था, तुम्हारे चंद बाल सफेद हो चुके थे, अब वो सफेद बाल कहाँ हैं? तुम्हारे सारे बाल काले हो चुके हैं। सुबह तुम्हारी आंखों के पास लकीरें पड़ी हुई थी, अब तुम्हारी जिल्द बिल्कुल साफ और जवान है। ज्वाला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दो ये काम। पूरी बरादरी हम पर बातें बनाती है, बड़ी मुश्किल से ये जगह रहने के लिए मिली है, अगर सरदार को पता चला तो वो हमें बरादरी से निकाल देंगे। ज्वाला का शोहर कामोस और भी कुछ कह रहा था, मगर जोयान को अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। वो पर्दे के पीछे से निकला और दबे कदमों दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इसकी बाइक सामने ही खड़ी थी। डर के मारे जोयान ने बाइक स्टार्ट न की कि कहीं ज्वाला का शोहर बाइक की आवाज न सुन ले।
कुछ दूर पैदल बाइक भगाने के बाद जोयान ने बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में भागा। जल्दी वो मेन रोड पर पहुंच गया। घर पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। थकन और खौफ से इसकी जान आधी हो चुकी थी। इसको लग रहा था कि जैसे वो मौत के मुंह से बचकर आया है। घर में सब सो चुके थे, वो भी चुपके से बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह जोयान की हालत देखकर इसके घर वाले हैरान और परेशान रह गए। ऐसा लगता था कि वो बरसों से बीमार है। जोयान बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। लगता था किसी ने इसके जिस्म से जान निकाल ली है। डॉक्टर ने इसको अच्छी तरह देखा और पूछा, क्या आपने कल किसी को ब्लड दिया है? जोयान ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, बल्कि कल क्या, मैंने तो कई माह से ब्लड डोनेट नहीं किया। डॉक्टर बोला, आपके जिस्म में खून की शदीद कमी है, कुछ दवाएं दे रहा हूँ, ये रोजाना लें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। जोयान डॉक्टर की बात पर हैरान था और वो सोचने लगा, कल रात तो मैं बिल्कुल ठीक था, अचानक जिस्म में ब्लड की कमी क्यों हो गई? 3 दिन की दवा और अच्छी डाइट के बाद जोयान की हालत बेहतर हो गई। इस बीच वो ज्वाला को नहीं भूल पाया। वो दोबारा ज्वाला से मिलना चाहता था। वो दिन रात ज्वाला के बारे में सोचता रहता, किस कद्र खूबसूरत लड़की का कैसा अजीब शौर है, न जाने बेचारी पर क्या क्या पाबंदियां लगाता है। सेहतयाब होते ही जोयान ने बाइक ली और ज्वाला के घर की तरफ चल पड़ा। इसे वो गली अच्छी तरह याद थी। जोयान इसी गली में दाखिल हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हर घर को देखता चला गया। सुबह का टाइम था, लोग आ जा रहे थे। जोयान को ज्वाला का घर कहीं नजर न आया। आखिर गली खत्म हो गई। ज्वाला ने सही कहा था कि वो एक बंद गली थी। जोयान ने बाइक वापस मोड़ी और फिर से एक एक घर को देखना शुरू किया। अब की बार जोयान एक जगह रुक गया और सोचने लगा, ये वो जगह है जहाँ ज्वाला के घर का गेट था। मगर जोयान की हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि इस जगह तो एक टूटा फूटा वीरान घर है, जिसकी छतें गिर चुकी है, दरवाजे खिड़कियां सब गायब हैं और दीवारें भी खस्ता हो चुकी है। जोयान का दिल कह रहा था कि यही वो जगह है जहाँ ज्वाला का आलीशान घर था। मगर 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि घर खंडर बन गया? जोयान ने पास से गुजरते एक शख्स को रोका और पूछा, भाई बात सुने, ये घर कैसे टूटा? यहाँ तो बड़ा शानदार घर बना हुआ था। वो आदमी हैरत से जोयान को तकने लगा और बोला, भाई मेरी सारी जिंदगी इस मोहल्ले में गुजरी है, मैंने बचपन से इस घर को इसी हाल में देखा है, आपने कब इस जगह आलीशान घर देख लिया? जोयान को हैरत का झटका लगा और वो बोला, नहीं नहीं, अभी परसों की बात है, यहाँ बड़ा खूबसूरत घर था। आदमी ने अजीब सी नजरों से जोयान को देखा और बोला, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था, ये जगह तो सालों से ऐसे ही वीरान पड़ी है। ये कहकर वो अपनी राह चल दिया। जोयान सर पर हाथ रखकर चारों तरफ देखने लगा और खुद से बोला, मैं भूल नहीं सकता, यही जगह थी। अचानक इसे अपने पीछे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। जोयान ने मुड़कर देखा, एक बिल्ली इसकी तरफ देख रही थी। हैरत और खौफ से जोयान का हल्क खुश्क हो गया। बिल्ली के करीब दूध का वही प्याला हाली पड़ा था जो जोयान ने ज्वाला के हाथ से लेकर रखा था। प्याला इसी जगह था जहाँ जोयान ने रखा था। बिल्ली ने जोयान की तरफ देखकर फिर से आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, ज्वाला से एक प्याला दूध और ला दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।